السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ دور پرے سے سفر کرتے ہوئے آپ تشریف لائے، کوئی کہاں سے ہیں کوئی کہاں سے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے لوگ آئے۔ کہاں چلے؟ حزب البحر کے لیے چلے۔ سچ پوچھیں، اس وقت مشکلات اور مسائل کے سمندر ہیں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، مشکلات اور مسائل کے سمندر ہیں، الجھنوں اور تکلیفوں کے سمندر ہیں، دکھوں اور مسائل اور قرضوں اور بیماریوں کے سمندر ہیں۔ جتنی طلاقیں اب ہیں گزشتہ انسانیت میں کبھی نہیں دیکھی۔ گلی محلے میں کبھی کبھار کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لوگ اس پہ ترس کھاتے تھے، تو گھر گھر اولاد کے مسائل، بے اولادی کے مسائل، طلاقوں کے مسائل۔ مجھے اس دن ایک بندے نے لسٹ دکھائی 2024 کی کہ صرف لاہور میں کتنی طلاقوں کے دعوے دائر ہوئے۔ میں مری روحانی منزل سے آ رہا تھا، تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے ایک جج ہیں، ان کی عدالت سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا میں ان سے ملتا جاؤں۔ ملنے گیا تو خوش ہوئے، کہنے لگے ابھی آپ سے پہلے میاں بیوی کی طلاق کے مسائل تھے، میں منتیں کر رہا تھا طلاق نہ ہو آپ کے درس سن سن کے، پر ان کا اصرار تھا کہ ہم نے طلاق لینی ہے۔ دل ٹوٹے، گھر ٹوٹے، من ٹوٹے، جذبے ٹوٹے۔ معلوم ہوا کہیں سے کوئی ہوا تو ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ گھر گھر شیاطین۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ درویش تھے، الہ آباد حضرت کے اہل حدیث مرید تھے، تو جب وہاں ان کے گھروں میں حضرت ہمارے گھر دعا کے لیے تشریف لائیں، تو حضرت ہر گھر میں جانے کے بعد فرمانے لگے فقیرو تورے گھر گھر جنات دے لانگھے ہیں، جنات کی گزر گاہیں ہیں۔ کیچڑ گندی نالی کا کتا بیٹھا ہو، اکثر دیکھا ہوگا نا گرمیوں میں کتا نالی کے اندر بیٹھتا ہے گرمی ختم کرنے کے لیے، وہی گندی کیچڑ اور گندگی کا بھرا ہوا کتا ہمارے گھروں میں، بستر میں، دسترخوانوں میں، ہمارے کھانوں میں چلے تو غلاظت نجاست نہیں پھیلائے گا؟ وہ نظر آتا ہے، یہ جنات شیاطین کی نجاست نظر نہیں آتی، جراثیم نظر نہیں آتے، پر ہوتے ہیں بیکٹیریا، وائرس، کرونا، ڈینگی، ملیریا، پر نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں۔ اس پورے حال میں ہمارا نیٹ ورک موبائل کا ہے، نظر نہیں آتا، ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں جان ہے، نظر نہیں آتی، ہوتی ہے۔ سیب کے اندر آئرن ہے، نظر نہیں آتا، اس میں کوئی تاریں نہیں نکلتی لوہے کی، پر ہے۔ روح کی بھی ایک دنیا، عملیات اور روحانیت کی بھی ایک دنیا ہے، نظر نہیں آتی پر ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا مسائل اور مشکلات کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک بحر بے کراں ہے، ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے، سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ان کے لیے سمندر چاہیے، اس کی رحمت اور مدد کا، اور آپ سارے خوش قسمت اور مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس کی شان کریمی کے سمندر کو جھولیاں بھر کے لے جا رہے ہیں۔ 9.25 صدیاں پہلے ایک درویش کو خواب میں یہ عمل ملا تھا، اور آپ نے روزے رکھے، تعدادیں پوری کی۔ اللہ پاک کا فضل ہے، تسبیح خانے نے ہر راحت پہنچانے کی کوشش کی۔ جنریٹر کے اوپر پوری ذمہ داری تھی،
लाइट आए जाए, पानी की टैंकियों में ठंडा पानी, पूरी जिम्मेदारियां और टीमों ने काम किया। आज झोलियां भर के जा रहे हैं, किसकी? उसके रहमत के समंदर की। और हिज्ब कहते हैं किले को, हिफाजत को, कड़े को, हिसार को, अपने इर्द गिर्द एक हिसार लेके जा रहे हैं। हमारे बड़े अकाबिर असलाफ, जिनकी निस्बतों से की बरकत से आज हमारे पास कुछ है, वो सारे वो थे जो हिज्बुल बहर के आमिल थे। हर साल हिज्बुल बहर को शराइत के साथ करने की कोशिश करते थे। सच पूछें अभी समझ नहीं आएगी। बाज जहरें देर से असर करती हैं, बाज टॉनिक जहर से असर करते हैं। ये वो टॉनिक है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। दुआएं ताक़ुब करती हैं। क्यों कहते हैं दुआ थी इस बंदे से चली गई, या इस बंदे को किसी की दुआ है? बद्दुआएं ताक़ुब और पीछा करती हैं कि लानत इस बंदे के पीछे है। हिज्बुल बहर की दुआएं हैं, हिज्बुल बहर की बरकतें हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शाज़ली सिलसिले से भी खिलाफत अल्हम्दुलिल्लाह एक दुर्वेश के जरिए से है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम के जरिए से मुझे शाज़ली सिलसिले की भी खिलाफत है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह वालियों, आपने ये बहुत बड़ा सरमाया कमाया है। इसके नक्श की मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। लिखा करें, इसके नक्श चाल के साथ लिखा करें, उसकी मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। मुआवजा लेने का फिक्र ना करना, पैसे लेने का फिक्र ना करना। जब ना लेने का फिक्र करोगे वहीं बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। जब लेने का फिक्र करोगे अल्लाह बरकत छीन लेगा। इसको पढ़ना रोज का मामूल बना लें। हराम हलाल जायज नाजायज का फिक्र करें, फराइज का फिक्र पाबंदी करें। फराइज से इसकी तासीर ताकत बढ़ जाएगी, फराइज से इसकी कुव्वत और ताकत बढ़ जाती है। आप दमे वापसी है, अपने मकाम पे तशरीफ ले जा रहे हैं। हिज्बुल बहर को जिंदगी का रोज का मामूल बनाएं। ये सफर के महीने की तो पढ़ ली, आइंदा साल अज़्म करें कि इसको फिर दोहराएंगे, अज़्म करें कि इसको फिर दोहराएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त मेरे सामने है और पूरी दुनिया ने हिज्बुल बहर तस्बीह खाने की निस्बत से तस्बीह खाने के साए में मैं भी तस्बीह खाने के साए में हूं, अल्हम्दुलिल्लाह किया। और पूरी दुनिया को हर साल नफा होता है। तो पूरी दुनिया और आप हजरात रोजाना मामूल बना लें, एक दफा पढ़ लें, 3 7 5 पढ़ लें, पर पढ़ें जरूर। इतना पढ़ लें कि आपको याद हो जाए। इसको जबानी याद करें, सफर हजर में पढ़ें। कोई मुश्किल कोई परेशानी हो, इसको पढ़ें। मुझे एक साहब थे सादिकाबाद के मिले, उनके पास कुछ अल्फाज थे। वो कहने लगे मैं एक किसी मुल्क की जेल में चला गया, मुझे वहां जेल में बंद कर दिया, हर चीज ले ली गई। बस मैं वो पढ़ता था और वही अल्फाज उंगली से दीवार पे लिखता था और मिटाता था, लिखता था और मिटाता था। मुझे वो खुद मिले, मैं उनका साहब का निजाम भी जानता था। कहने लगे एक वक्त आया, मेरी सुबह आंख खोली तो मैं अपने घर में सो रहा था। कौन सी कुव्वतें मुझे उठा के ले आई? अमलियात में कुन फाया कौन की तासीर है, क्योंकि ये अल्लाह के नाम हैं। इनमें तय्युल अर्ज है, ये लम्हों में फासले तय कराते हैं, लम्हों में। आज शेख मुहियुद्दीन अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की निशानियां साइंस तलाश कर करके बता रही है। सदियों पुराना उनका निजाम। मैं सौत में गया हूं उनके वहां, वो निजाम आज दुनिया कहती है कि इब्न अरबी सच्चे थे और इब्न अरबी ने सच कहा था। ये हिज्बुल बहर
जिन्नात, जादू, नजर बद, कर्जे, बेऔलादी, बीमारियां, तकलीफें, और जिसका बेड़ा पार न हो रहा हो। शेख शाजली, काहिरा में वहां गया और वहां जाके मैंने निजाम देखा, वहां से बेड़ा पार नहीं हो रहा था। जिसका बेड़ा पार जो चाहता है बेड़ा पार हो जाए, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि हिजबुल बहर से दोस्ती करें, हिजबुल बहर से मोहब्बत करें, और हिजबुल बहर को अपनी जिंदगी, अपनी राहों, अपने लफ्जों, अपने सीने और दिल की कैफियतों में शामिल करें। मैं मुख्तसर बात करूंगा। खाना तो खा लिया आपने, खाना आज मैंने दानिस्ता मुरगन खाना बनाया, बाकी तो दाल रोटी थी। चूंकि चिल्ला खत्म हुआ तो मैंने कहा आज मुरगन, और बेहतरीन मुरगन था। मुरगन खाना, मुर्ग से मुरगन खाना, मुरगन खाना था। अल्लाह ने आपको अपना नसीब खिलाया। तो अब इस सिलसिले में कोई सवाल हो, मैं कोई दर्श नहीं दूंगा, मुख्तसर बात, दुआ और रवानगी। इस सिलसिले में ज़िमन में कोई सवाल हो तो वो बताइए। किसी की तादाद पूरी ना हो रही तो पूरी करके जाएं जी। हाँ, घर जाके इशारों के साथ नहीं, बगैर इशारों के, जहां जहां इशारे हैं उसके बगैर। ये इशारों का ताल्लुक आपके हिजबुल बार के 6, 7, 8 सफर के साथ है जी। आवाज नहीं आ रही। कहते हैं हिजबुल बहर का वो अंदाज के जिन्नात आंखों से नजर आए। हाँ, वो अंदाज है मेरे पास, अगर आप कहते हैं तो बता दो। हैं, वो एक राज है जो मैं आज आप खोलना चाहता हूं। वो राज सिर्फ इसको मिलेगा जो पागल होगा। पागल, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, हिक मुक दीनी बेवल पैगन। गल पा, पागल हो जा, मिलता पागल को है। देखें, जिन्नात और फरिश्तों के सामने पर्दे अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह चाहे हटा दे। ये ला तुद्रिकुहुल अबसार, ये क्या है? हमने पर्दे दिए हैं, हम चाहे हटा दें। हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दाता साहब ने अपनी किताब का नाम कशफुल महजूब लिखा इसलिए है कि मुझसे पर्दे हट गए हैं। कशफुल महजूब, इस किताब का माना और तर्जमा देखें, मुझसे पर्दे हट गए जी। जी, बैठ जा। हाँ। बंदे मारू। आपने हिजबुल बहर 16 दफा रोज पढ़ता हूं, कहते हैं 14 मरतबा रोज पढ़ता हूं, मेरे सारे मसले हल हो गए सिवाय कारोबार के। हाँ, मालूम यह होता है अल्लाह थोड़ी रोजी दे के बड़ी जन्नत देना चाहता है। सच कह रहा हूं। कहते हैं 14 दफा रोज पढ़ता हूं, तहज्जुद में पढ़ता हूं, हर मसला हल हो गया, पर रोजी रोटी जरा कमजोर है। मेरा अल्लाह कहते हैं तुझे दुनिया में थोड़ा रिस्क देखे, आखिरत में कुछ दुनिया के गरीब होते हैं, आखिरत के अमीर होते हैं जी। पढ़ने की तादाद में पढ़े जी। घर में, सफर में, इशारों में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। भाई मैंने अर्ज किया, इशारे और बगैर इशारे दोनों से पढ़ सकते हैं। बनी इसराइल के गाय ना बनाना, ख्याल करना जी। कहते हैं मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है, इतनी देर बैठे नहीं इसलिए दर्द है। बैठ जाओ,
जी आप अब हिसार नहीं करेंगे, क्योंकि हिसार के साथ पढ़ के जा रहे हैं। सुने मैं एक बात, यही हिजबुल बहर खुद आपकी हिफाजत करेगी। क्या ख्याल है? जो हिजबुल बहर दूसरों की हिफाजत का जरिया है, वो पहले आपकी हिफाजत करेगी। अगर हिजबुल बहर पढ़ते हुए कोई सर दर्द, कोई तकलीफ, जिस्मानी बीमारी हो गई और हर चीज को हम हिजबुल बहर के ऊपर ले आए, किसके पढ़ने से हुआ था, ऐसा ना कीजिएगा, मेरी दरखास्त है। जी जी हाँ, 2018 की जनतरी में हिजबुल बहर के नकूश हैं। वो कहते हैं उन नक्श की भी इजाजत, सबको इजाजत है। और इजाजत की बात भी बता दो, मुझे बड़ों से इजाजत है, बहैसियत डाकिया की इजाजत दे रहा हूं, कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, बड़ों से इजाजत है, इस वजह से बहैसियत डाकिया इजाजत दे रहा हूं। जी लेकिन आप दूसरे सवाल शुरू कह रहे हैं, मेरे इलाके में वक्त दे दें। ना करें ऐसा, अल्लाह वाले ऐसा ना करें। जी घर से दूर हो, घर को, हमारे यहां मस्जिद अल फलाह है, हमारे हाफिज साहब आते हैं, वो कहने लगे मेरे यहां जूतियां गांठने वाला एक बंदा था, हजारे का, मानसेरा इस साइड का, तो वो उसे मैंने दुआ बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली मसनून दुआ याद करा दी। उसकी उसने मकई, वहां मकई होती है खेतों में, मकई बेची हुई थी। गरीब आदमी, गरीब आदमी, वो यहीं से बैठ के अपनी फसल का हिसार करता रहा, करता रहा। करता रहा, कहने लगे मैं वहां गया तो मेरी फसल ठीक। कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे तू क्या करता था? हम तेरी छलियां, वो होते ना फसल की, मकई तोड़ने आते थे, आगे अंधेरा होता था, नजर कुछ नहीं आता था। जूटियां गांठने वाला लाहौर के अल फलाह में हमारे हाफिज साहब हैं, उनके सामने बैठता, उन्होंने उसको याद करा दिया। आप कायनात में जहां हैं, अमाल की तासीर वहां पहुंचती है, यकीन हो। चले जी, अब बस। जी बाबा जी, देखे ना, आप सवाल कह रहे हैं मुझे जिन्नात तंग कर रहे हैं। अब गुजारिश यह है, जितने भी हजरात हैं जिन्होंने अमल किया, वो इंशाल्लाह अमल में सबको इजाजत है। पूरी दुनिया इस वक्त इंतजार में बैठी है दम के लिए, ऑनलाइन दम के लिए। असल तो अल्लाह के नाम की तासीर है, असल तो अल्लाह के नाम की ताकत है। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, पूरा वर्ल्ड ऑनलाइन है। मुझे तो एहसास उस वक्त होता है जब मुल्कों से बाहर जाता हूं, एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे एक दफा ना, एयरपोर्ट पे एक बंदा मोबाइल मिला के यूं देख रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ मैं वही हूं, वही हूं, अबकरी वाला हूं। लोग लोग आके कहते हैं, लोग आके कहते, एहसास होता है अल्लाह ने पूरी दुनिया में। और जब तुर्की कॉन्फ्रेंस अभी हुई, पहली 2015 में हुई थी, वहां जो दुनिया टूटती है, इखलास वाले सच्चे लोग आते हैं और उनके अंदर लिल्लाहियत है, उनके अंदर खुलूस है। अल्लाह मुझे वो सच्चा खुलूस मुझे भी दे दे। मौत से पहले मैं मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी कि तारिक 1 नंबर है या 2 नंबर है, दुकानदार है या ईमानदार है। अब दुआ करते हैं, दम करते हैं पहले।
पूरी दुनिया में जितने हजरात आप भी हैं अपनी मुश्किलात मसाइल का तसव्वुर करते हुए सर झुकाएंगे और अल्लाह के नाम का इसमें आजम का दम जो मुझे बड़ों ने दिया है वो कर देता हूं। अल्लाह अपने नाम की तासीर से पूरी दुनिया को फायदा देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह इखलास अता फरमा, हमारी हाज़री कबूल फरमा। दूर परे से तेरी बंदियां बंदे तेरा नाम लिए, तेरा नाम लिए, तेरा नाम लिए। ऐ अल्लाह अपने नाम की तासीर अता फरमा। कोई अगर हमारा गुनाह कोताही जिसकी वजह से तूने हमारा सब कुछ हमारे मुंह पे मार दिया, माफ भी कर दे, कबूल भी कर दे, माफ भी कर दे, कबूल भी कर दे। अल्लाह इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा, इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। हत्ता के जो कोई बंदा किसी मजबूरी से हिज़्बुल बहर की हाज़री नहीं दे सका, आज यहाँ मौजूद है और पूरी दुनिया में मौजूद है, अल्लाह उन्हें भी इसकी तासीर अता फरमा, इसकी तासीर अता फरमा और इसकी ताकत अता फरमा। जितने उन्होंने कुर्बानियाँ की हैं, यहाँ रोज़े रखे हैं, कुर्बानियाँ की हैं, अल्लाह वो टूट टूट जाते थे। बहुत लंबा गर्मी हब्स का रोज़ा, अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक उन्हें मजदूरी दे दे, उन्हें भाड़ा दे दे, उनकी झोलियां भर दे, आबाद और शाद कर दे, बामुराद कर दे, इज्जत दौलत बरकत के फैसले कर दे, रहमत अता शफकत और करम के फैसले कर दे। महरूमी से बचा, महरूमी से बचा, अल्लाह महरूमी से बचा। बस रहम फरमा और रहमत फरमा, कबूल फरमा, अता फरमा। दुनिया आखरत की सारी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा। अल्लाह जितने अपनी मुरादें लेके तेरी बंदियां बंदे आए हैं और पूरी दुनिया में बैठे हैं, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां ख़त्म फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह मेरे अकाबिर की तवज्जुहात अता फरमा, तवज्जुहात अता फरमा। बड़ों की छाँव से महरूम ना फरमा, बड़ों की छाँव से महरूम ना फरमा। बस रहम रहम और रहम फरमा, शफकत और अता फरमा। हर आमीन कहने वाले की आमीन को कबूलियत अता, कबूलियत अता। और दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे, सबकी हाजिरी कबूल फरमा और सबको परेशानियां मुश्किलों से नजात अता फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो हजरात यहाँ ठहरना चाहें ठहरें। 16 तारीख को इसी महीने की हजवेरी महल में 16 हफ्ता है, 17 एतवार है, मैं वहां मौजूद होऊंगा, कुछ अमल कराऊंगा हजवेरी महल में इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी को सहूलत हो जरूर तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।